It is decided by NTA and Education Ministry, not IIT. But for advance, as far as I know, IIT takes a call. तो जब लास्ट टाइम हम गए थे एडवांस के लिए, दे सेड कि द एडवांस का जो ये है आपको, यू विल हैव टू अप्रोच आईआईटी। मेंस के लिए डेफिनेटली नीट में और इसमें भी एनटीए ने हेल्प किया था, बट अगेन दे सेड कि इट्स नॉट अंडर आवर जुरिस्डिक्शन, नॉट आवर अंडर जुरिस्डिक्शन, मिनिस्ट्री को आप अप्रोच करें, पीएम को करें। So the thing is that now students are requested to now send several mails to PMO, Education Ministry, जितना हो सकता है आप लोग मेल्स करें, उनको रिप्रेजेंटेशन भेजें, उसका कॉपी इफ रिक्वायर्ड हम लोग अगर लीगली जाएंगे देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पुट इट अक्रॉस द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। तो आप लोग अपना कम्युनिकेशन उसमें करते रहें इनसे, ट्राई कम्युनिकेटिंग विद PMO and Education Ministry, because these are the only options now left for students. And now the problem is that most of the board students, they are going to appear for the board exam very soon, and the droppers, as far as the droppers are concerned, 75% jinka kam hai, those who have scored below 75%, they are now out from the race. So as I told some students that now the students जो है वो divide हो चुके हैं, 75% criteria वाले are limited students, those who have scored less than 75, maybe few thousand or maybe 1 lakh maximum, not more than that. So now students divide हो चुके हैं, because of which there will be less pressure. So I have requested students, because board वाले students भी अब पढ़ाई करेंगे, I don't think कि इतना उनके पास time भी है कि they are going to take a follow up या इतना ट्विटर कैंपेन कर पाए. It is very difficult because the time is very short. नोटिस जो है प्रदीप जी उन्होंने काफी डिक्लेयर किया, क्या यही रीजन मुझे लगता है, टाइम नहीं देना चाहते हैं बच्चों को कि ये कुछ भी स्टेप ले पाए. That's why they have issued the notification just 40 days before the exam. तो हम लोग, हमारे लिए भी बहुत फाइट है इन बच्चों को जस्टिस दिलाना इतने कम टाइम में, इसलिए आप लोग भी इतने जल्दी गए वहां पे मीटिंग करी, इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं वो, मैं बहुत उसका आपको हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ उस बात के लिए. प्रदीप जी, सुखपाल जी, सब they're always there for students. So now only option left is now that you need to communicate with PMO and Education Ministry. Keep tweeting, not board students, but I would request the droppers, at least जो droppers हैं वो जितने भी student union है हमारे country में, जितने भी लोग हैं, it's not that only me or Pradeep ji or any one particular union, जितने भी students union है in our country, parents association है, you approach everyone. आप अगर किसी YouTubers को जानते हैं, you know any teacher, you approach them, सबको approach करें and start tweeting. Twitter campaign को काफी बड़े उसमें level पे लेके जाएं, that is the option we have. But yes, not board students. I would suggest the board students to study, because we cannot give any guarantee whether these Twitter campaigns and all the court procedures and the cases in court is going to help or not. No one can give 100% guarantee even in court. तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ाई करें. That is my humble request. As far as droppers are concerned, they can definitely help these students. जिनके those who are out from the race, 75% वाले जो है. So this is all what I would like to suggest, and legally I am exploring some options. क्या क्या कर सकते हैं. I had a word with NCPC chairperson also yesterday, and I have sent a representation on his request, and I'll be taking a follow up with him. And legally also court का I'm exploring what all can be done, because Supreme Court is closed till 1st January. So it is really difficult. So we'll have to approach Bombay High Court, because I stay in Maharashtra, or other lawyers can approach the respective high courts if you know anyone. So this is what I would like to tell the students, Pradeep ji. That's okay. My side. Thank you, Anuba ji. I know अभी आपका I think 10 o'clock पे शायद किसी चैनल पे डिबेट भी है. हाँ, या रिपब्लिक पे है, and I'm going to raise this issue. Definitely वो allow नहीं करेंगे तब भी मैं बोल तो दूंगी, because the matter is totally different, which is BYJU'S का जो problem है. But yes, definitely JEE के students भी हैं, those who have taken BYJU'S का course, and even other coaching institutes have also not covered the syllabus completely, as told by some students कि कहीं कहीं पे तो syllabus ही नहीं complete हुआ है. So they are also suffering. So बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं उनके भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू वे आर नॉट अवेयर कि whether the exam is going to happen in the month of January. Notification should have come earlier. जो मुझे लगता है नोटिफिकेशन पहले आना चाहिए था, काफी पहले,
और as far as 75% criteria is concerned, एक point मैं भूल गई which I would like to raise here. See, जो 75% का criteria है, government should have informed the students in advance at the time of declaration, when they have declared, when they have come up with this notification that we are going to remove the 75% eligibility criteria. जब ये 20 में मैंने स्टूडेंट से मांगे हैं नोटिफिकेशंस, लेट मी सी क्या उसमें मेंशन किया है, बिकॉज 2020 एंड 21 में ये नोटिफिकेशन आया था. That time only they should have intimated the students and parents also कि this 75% eligibility criteria will be applicable only for 2021 and 22, not for 23. If they would have informed this in advance in 2020 and 21, then many students would have not taken drop. जिनके मार्क्स कम आए थे कोविड में 12th बोर्ड में, उनके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं पहुंचा था, बच्चों को क्या पढ़ते वो. तो वो जो बच्चे जिनके 75 से कम आए थे, now they are out from this race. If the government and NTA and all the education ministry, all these authorities would have informed the students in 2020 and 21 that 75 criteria जो है आपका सिर्फ 22 तक applicable है, 23 में we are going to reintroduce. So I think many students would have not taken drop and इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कोचिंग में बाहर जाके रहते हैं बच्चे अपना. they have spent like anything. पेरेंट्स जो है काफी पैसे स्पेंड करते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए. अगर ये तब पहले पता चल जाता, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को काफी रिलीफ मिलता. तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें रेज करना पड़ेगा. सोशल कैंपेन्स, मीडिया कैंपेन्स, बाकी मीडिया में भी ये सारी बातें रखिए आप. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट. थैंक यू. Thank you, Anuba ji. Yes, we did raise this point also, that in case they wanted to remove this criteria of 75%, they should have informed earlier, so that either the children should not have taken the, they should not have missed the earlier train. And in case they did, they should have informed at least that much before, so that in case some children had marks less than 75%, they could have rather reappeared for their 12th boards or particular subjects, so that they could increase their marks. But they were pretty adamant, but whatever little I could understand, that they were getting the instructions from above. I mean, it was they just said we are a testing body, we do whatever has been told to us. So what I could gather or what I could understand is, ultimately the power lies with our PMO, and in case IIT Guwahati or PMO or either of them agrees to this fact that yes, 75% criteria could be removed, then this is a possibility, and they said we have no issue with it if the instructions come either from above or from IIT Guwahati. So the issue can be taken up. Now how to go about it and what is the process, and since Pawan Badana is also there and he was also there today, so I would request Pawan Badana bhai, you also tell what happened today. Pawan. थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी. और जैसे कि सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर कर ही दिए, तो जो भी हमारी मीटिंग हुई थी उसके बाद मैंने IIT गुवाहाटी के अंदर एक मेरे रिसोर्सेज से मैंने डिस्कस किया था कुछ चीजें. तो डिस्कशन के बाद ये निकल के आया वहां से कि मैंने उनसे डिस्कस किया कि आपने जो 75% वाला क्राइटेरिया है वो क्यों इस बार अनाउंस किया है. तो डिस्कशन के बाद ये निकल के आया कि ये सिर्फ अकेले IIT गुवाहाटी का डिसीजन नहीं होता है, इसमें जितने भी IITs हैं उनके सबके साथ पहले एक मीटिंग होती है. मीटिंग के अंदर ये डिसीजन हुआ कि हमें 75 क्राइटेरिया को इस बार अनाउंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. तो वहां से सारा मीटिंग में जो इनकी बॉडी होती है उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद इन्होंने NTA को ये इंस्ट्रक्ट किया कि इस बार से हम 75% वाले क्राइटेरिया को अनाउंस करेंगे. तो फिर मैंने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने ड्रॉप ले लिया जबकि उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, बट उनका 75% बोर्ड में नहीं है. तो ये भी पॉइंट डिस्कस हुआ. तो उन्होंने यही बोला कि अकेले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ है तो आपको पूरे सभी लोगों को IIT गुवाहाटी पहुंचना पड़ेगा और अपना एक रिप्रेजेंटेशन वहां पे देना पड़ेगा और मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ डिस्कशन हो सकता है. तो ये अकेले IIT गुवाहाटी का ही नहीं है, ये जितने भी IITs हैं या और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते होंगे. सिर्फ उन्होंने यही बताया कि सारे IITs की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि इस बार से हम 75% वाले क्राइटेरिया को अनाउंस करने वाले हैं. दूसरी चीज, अगर PMO की बात करें, PMO में मीटिंग की, तो जैसे प्रदीप सर ने बता ही दिया है ऑलरेडी कि NT ने क्लियरली बोल दिया कि पोस्टपोनमेंट हमारे हाथ में नहीं है.
या तो हायर अथॉरिटी ही कर सकती हैं, और हायर अथॉरिटी में उन्होंने सीधा पॉइंट आउट किया था पीएमओ को कि पीएमओ ही डिसीजन ले सकता है, अगर वहां से कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो हमें चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि पोस्टपोन्ड होगा, ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, ये क्लियर है। और मैं बार बार आपको, इसीलिए हम बहुत जल्दी एंटी ऑफिस भी गए ताकि आप लोगों के पास जो ये 30-40 डेज बचे हुए हैं ये आपके खराब ना हो। तो आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट है कि फोकस ऑन स्टडी। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत 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 कम चांसेस हैं पोस्टपोनमेंट के, बहुत ही कम चांसेस हैं जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पीएमओ के अंदर मीटिंग करना इतना आसान होता नहीं है। लास्ट टाइम भी नीट के लिए जब पीएमओ ऑफिस में मैं गया था 5 जुलाई को, बड़े मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला था, बहुत मुश्किल से। आपने जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ से रिसोर्स लगा था, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले मैंने अपनाए थे, तब जाके पीएमओ के अंदर मीटिंग हुआ था। पीएमओ के अंदर जो मीटिंग होता है वो इतना आसानी से नहीं होता है, और उसमें भी टाइम लगता है, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का बात है, एक बारी वो मैं सबमिट करा सकता हूँ किसी के द्वारा वहां पर, लेकिन डायरेक्ट मीटिंग बहुत ही रेयर केसेस में पॉसिबल है। उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होना चाहिए हमारे पास, और आप लोगों के पास टाइम नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कमिटमेंट किया था कि 15 to 20 आएंगे, लेकिन 4-5 बच्चे सिर्फ पहुंच पाए। तो मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फोकस ऑन स्टडी सभी बच्चों से, और बाकी हम बैकएंड में काम करते रहेंगे। आईआईटी गुवाहाटी की बात है, वहां पे भी मैंने अपने रिसोर्सेज निकाले हैं आज, और वहां पे कॉल भी किया था। और चाहे पीएमओ की बात है, पीएमओ में भी देखते हैं अगर हमें अपॉइंटमेंट मिलता है किस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें हम बैकएंड से ही काम करेंगे, और बैकएंड से काम करके, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो मुझे पता है डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, स्वाभाविक है, होगा। और जब आप में डिस्ट्रैक्शन होता है तो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी होगी। मैं नहीं चाहता कि आपके पास जो ये 30 to 40 डेज बचे हुए हैं